Today we want to consider a word of encouragement for those who feel their life has been a failure. इस अंतिम अध्ययन में हम उन लोगों के लिए प्रोत्साहन के एक शब्द पर विचार करना चाहते हैं जो महसूस करते हैं कि उनका जीवन असफल रहा है. Lots and lots of people feel that they have messed up their lives so badly and they wonder, what can I do with my life for God now? बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को इतना खराब कर दिया है कि वे सोचते हैं मैं अब परमेश्वर के लिए अपने जीवन में क्या कर सकता हूँ. There is a message of hope in the Word of God for such people. ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में आशा का संदेश है. There are many brothers and sisters, believers who feel that because they have sinned and failed God at some time in their past lives, therefore they can't fulfill God's perfect plan for their lives now. ऐसे कई भाई बहन हैं, विश्वासी हैं जो महसूस करते हैं कि क्योंकि उन्होंने अतीत में कई पाप किया है और परमेश्वर को निराश किया है, वे अब अपने जीवन के लिए परमेश्वर की उत्तम योजना को पूरा नहीं कर सकते. Because they say, well, once upon a time, when I was young, if I had yielded completely to God and lived in His perfect will, maybe I could have, but I've made such a mess of my life. What can I do now? वे कहते हैं, अच्छा एक समय था जब मैं युवा था और अगर मैंने पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पण किया होता और उनकी उत्तम इच्छा के अनुसार जीवन जिया होता तो शायद मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने अपने जीवन को इतना खराब कर दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ. Now, according to logic and our own human understanding, that sounds right. अब तर्क और हमारे अपने मानवीय तर्क के अनुसार यह सही लगता है. But let's look at the scriptures and you may find that God's thoughts are completely different. God's ways are completely different. There's hope even for you. लेकिन आइए हम शास्त्रों को देखें और आप पाएंगे कि परमेश्वर के विचार इस विषय पर पूरी तरह से अलग है. परमेश्वर के तरीके पूरी तरह से अलग है. वहां आपके लिए भी आशा है. Notice first of all how the Bible begins. सबसे पहले ध्यान दे कि बाइबल कैसे शुरू होती है. In the beginning, God created the heaven and the earth. That's written in Genesis 1 verse 1. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की. यह उत्पत्ति 1:1 में लिखा गया है. And after the heavens and the earth were made, जब आकाश और पृथ्वी बनाई गई, when God makes anything, it's perfect. They must have been perfect. क्योंकि जब भी परमेश्वर कुछ बनाते हैं तो वह सिद्ध होता है, इसलिए वे आकाश और पृथ्वी भी सिद्ध रहे होंगे. Because He never does anything imperfect. तो परमेश्वर कभी भी कुछ असिद्ध नहीं करते. But some of the angels whom He had created fell away. लेकिन कुछ स्वर्गदूत जिन्हें उन्होंने परमेश्वर ने बनाया था पाप में गिर गए. And that's described in Isaiah 14 verses 11 to 15 and Ezekiel 28 verse 13 to 18. इसका वर्णन यशाया 14 उसका 11 से 15 और यहज़िकल 28 उसका 13 से 18 में किया गया है. And when that happened, we read in Genesis 1:2, the earth became formless and void and empty and dark. जब वह पतन हुआ तो हम उत्पत्ति 1:2 में पढ़ते हैं, पृथ्वी निराकार और शून्य और खाली और अंधकारमय हो गई. But then what did God do? He didn't leave the earth in that condition. तब परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने पृथ्वी को उस स्थिति में नहीं छोड़ा. It says the Holy Spirit began to move upon that earth and the word of God went forth on that earth and God remade that earth. वहां कहा गया है कि पवित्र आत्मा उस पृथ्वी पर मंडराता था और परमेश्वर का वचन उस पृथ्वी पर आगे बढ़ा और परमेश्वर ने उस पृथ्वी को फिर से बनाया. He worked on that shapeless, empty, dark mass and made something so beautiful out of that mess that at the end of it he could say in Genesis 1:31, it's very good. उसने उस आकारहीन खाली अंधकारमय द्रव्यमान पर काम किया और उस गंदगी से कुछ इतना सुंदर बनाया कि इसके अंत में वह उत्पत्ति 1:31 में कह सकते थे यह बहुत अच्छा है. Now what's the lesson in the first chapter of the Bible? अब बाइबल के पहले अध्याय में क्या सबक है? You see how God said appears in the first chapter. आपने देखा कि परमेश्वर ने कहा पहले अध्याय में आता है. That even if the devil has made a mess of your life, if you surrender to God's word and to the Holy Spirit, He can make something excellent out of your life. भले ही शैतान ने आपके जीवन को खराब कर दिया हो, यदि आप परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण करते हैं और पवित्र आत्मा के माध्यम से वह आपके जीवन में कुछ उत्कृष्ट बना सकते हैं. No matter how much you fail. चाहे आप कितना भी असफल क्यों ना हुए हो. Now, before
this failure of Lucifer, God must have had a perfect plan for the heavens and the earth. लूसीफर के पतन से पहले परमेश्वर के पास आकाश और पृथ्वी के लिए एक उत्तम योजना रही होगी। But when Lucifer sinned, that plan had to be set aside. जब लूसीफर ने पाप किया तो उस योजना को अलग रखना पड़ा। But God remade the heavens and still made something good out of it. लेकिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को फिर से बनाया और फिर भी उसमें से कुछ अच्छा बनाया। And now see what happens next. और अब देखिए आगे क्या होता है। God creates man and woman. परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया And He's got a perfect plan for Adam and Eve. और उसके पास आदम और हव्वा के लिए एक उत्तम योजना थी। And in God's perfect plan for Adam and Eve, there was no provision for them to eat of this forbidden tree. आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर की उत्तम योजना में उनके लिए इस वर्जित वृक्ष से खाने का कोई प्रावधान नहीं था। That was not God's will. In fact, God clearly said you shouldn't eat of that. यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। वास्तव में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए। So if God had a plan for them, the plan was they should not eat of it. इसलिए परमेश्वर के पास उनके लिए एक योजना थी और वो योजना यह थी कि उन्हें इसे नहीं खाना चाहिए। But they did eat of it. And they spoiled God's plan. लेकिन उन्होंने इसे खाया और उन्होंने परमेश्वर की योजना को बिगाड़ दिया। Now if we go by logic and reason, we will have to say, well, now they cannot fulfill God's perfect plan. अब अगर हम तर्क और कारण से चलते हैं तो हमें कहना होगा ठीक है, अब परमेश्वर की उत्तम योजना को पूरा नहीं किया जा सकता। Now we have to go to God's second best. अब हमें परमेश्वर के दूसरे सर्वश्रेष्ठ पर जाना होगा। But what do we read there? लेकिन हम वहाँ क्या पढ़ते हैं? We read there that the Lord comes to Adam and Eve after they have sinned and tells them, well, don't worry, I'm going to solve this problem. I'm going to send a seed through the woman. That's referring to Christ, who will come and bruise the serpent, the devil on his head and destroy his power over you. हमने वहाँ पढ़ा कि आदम और हव्वा के पाप करने के बाद प्रभु उनके पास आए और उनसे कहा, चिंता मत करो, मैं इस समस्या का हल करने जा रहा हूँ। मैं स्त्री के द्वारा एक बीज भेजने जा रहा हूँ जो मसीह को संदर्भित करता है, जो आएगा और सांप शैतान के सिर को कुचल देगा और तुम पर उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। So there he's speaking about Christ dying for our sins and overcoming Satan on तो Calvary. वहाँ वह मसीह के बारे में बता रहे हैं जो हमारे पापों के लिए मरेंगे और कलवरी पर शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे। Now tell me this. अब मुझे यह बताओ, What is your answer to this question? इस प्रश्न के लिए तुम्हारा उत्तर क्या है? Was the death of Christ part of God's perfect plan for us from all eternity or क्या not? मसीह की मृत्यु अनंत काल से हमारे लिए परमेश्वर की उत्तम योजना का हिस्सा था या नहीं? The Bible says in Revelation 13 verse 8 that the Lamb was slain from the foundation of the world. बाइबल प्रकाशित वाक्य 13:8 में कहती है कि मेमना जगत की उत्पत्ति से ही घात हुआ है। So was that in God's mind from eternity or was it God's second तो best? क्या यह अनंत काल से परमेश्वर के मन में था या क्या यह परमेश्वर की दूसरी सर्वश्रेष्ठ योजना थी? How many of you would dare to say that the death of Christ on Calvary was God's second best? आप में से कितने लोग यह कहने की हिम्मत करेंगे कि कलवरी के क्रूस पर मसीह की मृत्यु परमेश्वर की दूसरी सर्वश्रेष्ठ योजना थी? Wasn't it his perfect plan? It was. क्या यह उनकी उत्तम योजना नहीं थी? हाँ, यह थी। But yet, when you turn to Genesis 3, logically you have to say Christ had to die only because Adam and Eve failed. फिर भी जब आप उत्पत्ति 3 की ओर मुड़ते हैं और तार्किक रूप से आपको कहना होगा कि मसीह को केवल इसलिए मरना पड़ा क्योंकि आदम और हव्वा असफल हो गए थे। If Adam and Eve had not sinned, there would be no need for Christ to die on the cross at all. यदि आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया होता तो मसीह को क्रूस पर मरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। So then, was it God's perfect plan or not? तो क्या यह परमेश्वर की उत्तम योजना थी या नहीं? And we would not have known of God's love if Adam had not sinned. साथ ही यदि आदम ने पाप नहीं किया होता तो हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं जान पाते। There would have been no Calvary's cross. कलवरी का क्रूस नहीं होता। What's the answer? You're confused. उत्तर क्या है? आप दुविधा में हैं। Because our human understanding cannot grasp this. क्योंकि हमारी मानवीय समझ यह नहीं समझ पाएगी That even where man has failed, God can still fulfill his perfect plan. कि जहाँ मनुष्य असफल हो गया है वहाँ भी परमेश्वर अपनी उत्तम योजना को पूरा कर सकते हैं। Now human logic fails here. It baffles us. अब मानवीय तर्क यहाँ विफल हो जाता है, यह हमें चकित कर देता है। That's why the Bible says, don't lean on your own understanding.
Trust in the Lord with all your heart. इसलिए बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा मत लो, अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो। If God was working according to mathematical logic, then we'd have to say that Christ coming to the earth was God's second best plan. अगर परमेश्वर गणितीय तर्क के अनुसार काम कर रहे थे तो हमें कहना होगा कि मसीह का पृथ्वी पर आना परमेश्वर की दूसरी सबसे अच्छी योजना थी। But that's blasphemous. लेकिन यह परमेश्वर की निंदा है। It was part of God's perfect plan. यह परमेश्वर की उत्तम योजना का हिस्सा था। God makes no mistakes. परमेश्वर कोई गलती नहीं करते। God, who knows the end from the beginning and who silently plans for us in love, plans something allowing for our failures. परमेश्वर जो शुरू से ही अंत को जानते हैं और जो चुपचाप हमारे लिए प्रेम से योजना बनाते हैं, वो हमारी असफलताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ योजना बनाते हैं। He knows that we're going to fail. He allows for our failures and has made a perfect plan for us. That's the word of encouragement that there is for you. वह जानते हैं कि हम असफल होने जा रहे हैं, वह हमारी असफलताओं को ध्यान में रखते हैं और हमारे लिए एक उत्तम योजना बनाते हैं। यही प्रोत्साहन का शब्द है जो आपके लिए है। God's perfect plan for Adam was certainly not that they should eat of the tree of knowledge of good and evil. आदम के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना निश्चित रूप से यह नहीं थी कि वह अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाएं। But because he knew the end from the beginning, he knew that they would fail, and so he'd already made a plan that accounted for that failure. बल्कि चूंकि वो शुरू से ही जानते थे कि अंत क्या है, इसलिए वो जानते थे कि वे असफल होंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही उस असफलता के लिए एक योजना बना ली थी। The same way in your life. There are a lot of things you've done in your life God never wanted you to do. उसी तरह आपके जीवन में आपने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें की है जो परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि आप करें। But do you know that in His great love for you and in His perfect wisdom, He has made allowance for that failure and can still lead you into His perfect plan. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके प्रति अपने महान प्रेम और अपनी सिद्ध बुद्धि में उन्होंने उस असफलता के लिए छूट दी है और फिर भी वह आपको अपनी सिद्ध योजना में ले जा सकते हैं। His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. उनके तरीके हमारे तरीके नहीं है, उनके विचार हमारे विचार नहीं है। So don't let your logic and reason say, oh, now I cannot do God's perfect will for my life. इसलिए अपने तर्क और विवेक को यह कहने न दे, ओ अब मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। God's message to us from these opening pages of the Bible is just this. बाइबल के इन शुरुआती पन्नों से परमेश्वर का हमारे लिए संदेश बस यही है That He can take a man who has failed and make something glorious out of him and still make him fulfill God's perfect plan for his life. वह एक ऐसे व्यक्ति को ले सकते हैं जो असफल हो गया है और उसे कुछ शानदार बना सकते हैं और फिर भी उसे अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। That's in the first pages of the Bible and we must never forget it. यह बाइबल के पहले पन्ने पर है और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। And if you're a failure, God can pick you up and fulfill not His second best or third best, but His perfect plan. यदि आप असफल हैं तो परमेश्वर आपको उठा सकते हैं और अपनी दूसरी या तीसरी सर्वश्रेष्ठ योजना को पूरा नहीं करेंगे बल्कि अपनी सिद्ध योजना को पूरा करेंगे। That's why it's important for you to give the rest of your life totally to God. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना शेष जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दें। See, because even our failure may, though it is not part of God's perfect plan, may be permitted by Him to teach us some lessons. हमारी बहुत सी असफलताएं, हालांकि ये परमेश्वर की सिद्ध योजना का हिस्सा नहीं है, हो सकता है कि वह हमें कुछ सबक सिखाने की अनुमति देते हैं। For example, we never learn humility, unfortunately, except through many failures. उदाहरण के लिए दुर्भाग्य से हम कई असफलताओं के बावजूद भी नम्रता नहीं सीख पाते। We try to get victory over sin. So many times we fail and fail and fail and fail and fail, and we realize finally that we cannot without God's help. हम पाप पर विजय पाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम असफल होते हैं, असफल होते हैं, असफल होते हैं और अंततः हम महसूस करते हैं कि हम परमेश्वर की सहायता के बिना ऐसा नहीं कर सकते। Well, that's an education we got through our खैर, failure. यह एक शिक्षा है जो हमें अपनी असफलता के माध्यम से मिली है। See, for example, Peter. Part of Peter's training for leadership
was failure. उदाहरण के लिए पतरस को ही ले, अगुआ बनने के लिए पतरस के प्रशिक्षण का एक हिस्सा असफलता थी। The Lord could not break Peter through educating him, through teaching him, but when he denied the Lord 3 times, which was certainly not God's perfect will, प्रभु उसे शिक्षित करके, उसे सिखाकर उसे तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन जब उसने 3 बार प्रभु को अस्वीकार किया, जो निश्चित रूप से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं थी, it accomplished something in Peter. It broke him. फिर भी उसने पतरस में कुछ पूरा किया, इसने उसके घमंड को तोड़ दिया। That was God's perfect will, that it should be broken. और ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी कि उसका घमंड टूट जाए। So God can use failure to accomplish something good. इसलिए परमेश्वर असफलता का उपयोग कुछ अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। See, one of the biggest problems that God has with us is to bless us in such a way that the blessing does not puff us up with pride. परमेश्वर की हमारे साथ सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि हमें इस तरह से आशीर्वाद देना कि आशीर्वाद हमें घमंड से फुला न दे। You see, if you get victory over anger and then you become proud, that's falling into a far deeper pit than anger itself. आप देखिए, अगर आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और फिर आप घमंडी हो जाते हैं, तो यह क्रोध से भी कई अधिक गहरे गड्ढे में गिरने जैसा है। So, it's not only important to get victory over sin, it's important to be humble at the end of it. इसलिए केवल पाप पर विजय प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अंत में नम्र होना भी महत्वपूर्ण है। And how does that happen? Only if God allows us to fail many अब यह times. कैसे होता है? केवल तभी जब परमेश्वर हमें कई बार असफल होने देते हैं। Genuine victory is always accompanied by humility. सच्ची विजय हमेशा नम्रता के साथ होती है। And the other thing is, if we have failed many times, we can never despise another person. और दूसरी बात यह है कि अगर हम कई बार असफल हुए हैं, तो हम कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझ सकते, Because we know we failed ourselves. क्योंकि हम जानते हैं कि हम खुद असफल हुए हैं। So we're not saying that a man should therefore keep on sinning. You know, इसलिए हम यह नहीं कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को पाप करते रहना चाहिए, नहीं। Paul speaks about that, saying, well, if my dishonesty brought glory to God, Romans 3, 7 and 8, if you follow through with that idea, you come to this, the worse we are, the better God likes it. पौलुस ने इस बारे में कहा, अच्छा, अगर मेरी बेईमानी ने परमेश्वर को महिमा दी और अगर आप इस विचार का पालन करते हैं, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम जितने बुरे हैं उतना ही परमेश्वर को अच्छा लगता है। The damnation of those who say such things is just. लेकिन जो लोग ऐसी बातें कहते हैं, उनका दंड उचित है। No, we're not saying that we have to sin. नहीं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमें पाप करना है। What we're saying is if we have failed, God is not frustrated in fulfilling His plan for our हम life. यह कह रहे हैं कि अगर हम असफल हुए हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अपनी योजना को पूरा करने में निराश नहीं हुए हैं। Every man whom God has used has failed. परमेश्वर ने जिस भी व्यक्ति का उपयोग किया है, वह असफल हुआ है। Peter, Paul, John, James, you, I, everyone. पतरस, पौलुस, यूहन्ना, याकूब, आप, मैं, हर कोई। God has not called people who never made mistakes in their life. परमेश्वर ने ऐसे लोगों को नहीं बुलाया है जिन्होंने अपने जीवन में कभी गलतियां नहीं की। If God could fulfill His perfect plan only in the lives of those who never made a mistake, then we'd have to say Jesus Christ was the only person who ever fulfilled God's perfect plan for his life, nobody else. अगर परमेश्वर अपनी सिद्ध योजना को केवल उन लोगों के जीवन में पूरा कर सकते हैं जिन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, तो हमें कहना होगा प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना को पूरा किया होता, कोई और नहीं। Great men of God may not have told you about their failures, but they have failed too. परमेश्वर के बहुत से महान पुरुषों ने शायद आपको अपनी असफलताओं के बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन वे भी असफल हुए हैं। Now the question is whether you can believe that or not. अब सवाल यह है कि क्या आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। You see, if you don't believe this, if you say, no, it's not possible in my case, then it won't work. यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते और यदि आप कहते हैं नहीं, मेरे मामले में यह संभव नहीं है, तो यह काम नहीं करेगा। But if you can believe, Lord, there is nothing impossible for you. लेकिन यदि आप विश्वास कर सकते हैं, प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। You can take the mess I've made of my life and still accomplish something glorious, fulfill your perfect plan. It will happen according to your faith. आप मेरे जीवन में जो गड़बड़ियां की है, उन्हें लेकर भी कुछ शानदार कर सकते हैं और अपनी उत्तम योजना को पूरा कर सकते हैं, तो यह आपके विश्वास के अनुसार होगा।
Think of the story of the prodigal son, who wasted so many years and all the father's money, and when he came back, the Bible says he got the best robe and the best seat. What was that? उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में सोचे, जिसने इतने साल और अपने पिता का सारा पैसा बर्बाद कर दिया, और जब वो वापस आया तो बाइबल कहती है उसे सबसे अच्छा वस्त्र और सबसे अच्छी सीट मिली। It's a message that says that God can pick up a person who's made a mess of his life and make something glorious out of him. That's the story of the prodigal वह son. क्या था? एक संदेश है जो कहता है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसने अपने जीवन में गड़बड़ियां की है और उससे कुछ शानदार बना सकते हैं। यही उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। Think of the story of the man who went out hiring laborers. उस आदमी की कहानी के बारे में सोचे जो मजदूरों को काम के लिए रोजंदारी पर लाने के लिए बाहर गया था। He went at 6 o'clock in the morning and hired laborers, and then he went at 5 o'clock in the evening to hire laborers who could work only for 1 hour out of 12. वह सुबह 6 बजे गया और मजदूरों को रोजंदारी पर काम पर रखा, और फिर वह शाम को 5 बजे मजदूरों को काम पर रोजंदारी पर रखने के लिए गया, जो 12 घंटों में से केवल 1 घंटे ही काम कर सके। In other words, they had wasted 90% of their life. दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने जीवन का 90% बर्बाद कर दिया था। 11 hours out of 12. यानी 12 में से 11 घंटे। And they went and worked and they got their reward first. लेकिन जब वे काम करने गए तो उन्हें पहले अपना इनाम मिला। What does that parable in Matthew 20 teach us? मत्ती 20 में दिया गया दृष्टांत हमें क्या सिखाता है? That God can do something even with those who have ruined 90% of their lives. कि परमेश्वर उन लोगों के साथ भी कुछ कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन का 90% हिस्सा बर्बाद कर दिया है। Nobody is so hopeless that God cannot do something with him. कोई भी व्यक्ति इतना आशाहीन नहीं हो सकता कि परमेश्वर उसके साथ कुछ न कर सके। Jesus came to destroy the works of the devil, we read in 1 John 3 verse 8. हम पहले यूहन्ना 3:8 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आए थे। He can untie all the knots that the devil has tied up in your life, my brother, my sister. वह उन सभी गांठों को खोल सकते हैं जो शैतान ने आपके जीवन में बांध दी है, मेरे भाई मेरे बहन। Don't listen to the lies of the devil. शैतान के झूठ पर विश्वास मत करें। When he says, no, that's impossible, if you believe him, it'll be impossible. जब वो कहता है नहीं यह असंभव है, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो यह असंभव होगा। But if you believe God, who can take the broken vessel and as a potter make it again anew, then it will be fulfilled in your life. लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो टूटे हुए बर्तन को ले सकते हैं और एक कुम्हार के रूप में इसे फिर से नया बना सकते हैं, तो यह आपके जीवन में पूरा होगा। Whatever your blunders and failures, you can make a new beginning. And if you've made 1,000 new beginnings, make 1,001st new beginning today. चाहे आपकी गलतियां और असफलताएं कुछ भी हो, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपने 1000 नई शुरुआत की है तो आप आज 1001 नई शुरुआत कर सकते हैं। God can make something glorious out of your life. परमेश्वर आपके जीवन से कुछ शानदार बना सकते हैं। Give glory to God by believing this is truth. इस पर विश्वास करके कि यह सच है, परमेश्वर की महिमा करें। And one day in eternity God will show you as a person who was a failure, but from whom He brought tremendous glory in your earthly life. और एक दिन अनंत काल में परमेश्वर आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे जो एक असफल व्यक्ति था, लेकिन जिससे उसने आपके सांसारिक जीवन में जबरदस्त महिमा लाई।